going to continue the same chapter, chapter number 6, Three Lucky Goats. The chapter which I have started in the previous week. It was left in the center and I was quietly disturbed due to some reasons. So today I'm going to continue the same chapter from the beginning. This class will be a little longer, so don't be hesitate and I will make you to understand from the beginning itself. Okay. So I'm going to start this chapter about three lucky goats. What do you think? Which do you believe? In luck is bigger or hard work? Give reasons in support of your answer. आपको क्या समझ में आता है कि क्या है सबसे बड़ा मतलब भाग्यशाली में? क्या हम अपने भाग्य में ज़्यादा विश्वास करते हैं या फिर हम अपने मेहनत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं? क्या सही होगा, इसका जवाब आपको देना है. दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस थ्री गुड स्टोरी. Once there lived a peasant's widow with her only son named Sam. They had two milking cows. Unfortunately, a year of drought came. They had no fodder to feed the cows, so they decided to sell the cows in the market of the nearby town. एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान की पत्नी रहती थी. वो विधवा हो चुकी थी और उसके एक ही बेटे थे जिसका नाम था सैम, और उनके पास दो दुधारू गाय थी जिससे वो लोग अपने जीवन को बिताते थे. लेकिन अचानक दुर्भाग्यवश उसके गांव में सूखा पड़ गया, मतलब अकाल आ गया, और उनके पास कोई भी चारा नहीं था कि वो अपने जानवरों को या गाय को खिला सके. तो इस तरह से उन लोगों ने एक दिन निर्णय लिया कि हम जा कर के पास के बाज़ार में, मार्केट में जा कर के हम इस गाय को बेच देते हैं. One day, on the way, the town, Sam met an old woman with her three goats. Both Sam and the old woman rested for a while under a tree. They plucked leaves from it to feed their animals. It is not a good time for the peasants, said the old woman. I have to sell my cows, murmured Sam. So, you give me your cows and take my three goats. We don't have grain for our meals. How can we feed your goats? But these goats are very much better than money. They will someday bring fortune to you. The old woman took a bamboo flute from her willow basket and began to play low. The goats began to dance to the tune. Now, as they have planned to move to the town and sell their goats and cows. While Sam was on the way to his town to sell the cows, he met with an old lady. She also is having three goats to sell in the market. But during the way, they sat under a tree and and willing to take rest for some time. In between that, they were taking rest and they both plucked the leaves from the trees and gave to the animals to let them feed. But in between that, that old woman said that this is not a good time for the peasants. What do you mean? मतलब किसानों के लिए समय अच्छा नहीं है. I have to sell my cows, murmured Sam. और सैम भी जो है अपने मुंह में ही बड़बड़ाता है, फुसफुसाता है कि यार ये तो बोल रही है मैं अपने बकरी बेचने जा रही हूँ, हमें भी तो अपने गाय बेचनी है. तो then what happens? The old lady says that give me your cows and take my three goats. और वो बूढ़ी कहती है कि एक काम करो, तुम अपने दो गाय को मुझे दे दो और मेरे पास जो तीन बकरियां हैं ये तुम ले लो. Then Sam starts to say that हमारे पास ही खाने के लिए नहीं है. We don't have grains for ourselves. How can we feed the goats? कहता है सैम कि हमारे पास ही खुद खाने के लिए अनाज नहीं है तो हम ये जानवरों को कहाँ से खिलाएंगे. Then again that old lady says that but these goats are much better than the money. They will make you fortune one day. कहती है कि ये बकरियां जो है तुम्हारे पैसे से भी बढ़कर है, किसी न किसी दिन वो तुम्हारे भाग्य को खोल सकती है, मतलब तुम्हारा भाग्य चमका सकती है. और उसके बाद what happens? The old woman took a bamboo flute from her willow basket and started to play.
The goats began to dance to the tune. तब उस बूढ़ी ने अपने झोले में से एक बांस की बांसुरी निकाली और उसको बजाने लगी। उसकी आवाज़ को सुन करके, उसकी धुन को सुन करके ये बकरियां उस धुन के अनुसार नाचने लगती है। दिस गोट्स आर नॉट द वंस यू सी इन द प्लेन्स। दे हैव लॉन्ग हेयर, लॉन्ग फ्लैपिंग ईयर्स एंड राउंड नोज। आई बॉट फ्रॉम हाई द माउंटेन्स। अब ये कहती है कि जो बकरियों को तुम देख रहे हो, ये मैदानों में पाए जाने वाले बकरियां नहीं हैं। इनके लंबे लंबे बाल, इनके लंबे लंबे फड़फड़ाती हुई कान और इनके गोल नाक, ये सब यहाँ पाए जाने वाले बकरियां नहीं है। ये इन बकरियों को मैंने पहाड़ों पर से लाई हूँ। सैम वॉज ग्रेटली अमेज्ड एट द डांस ऑफ द गोट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन बाय द ओल्ड वुमन। अब सैम जो है इसकी बातों को सुन करके, देख करके बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तरह के बकरियों को नाचते उसने कभी देखा नहीं था। और इन बकरियों के बारे में जो जिस प्रकार का विवरण उस बूढ़ी स्त्री ने दी थी, बूढ़ी ने कहा था, और उसकी बातों को सुनकर ये काफ़ी घबरा जाता है, हैरान हो जाता है। I can earn a few pennies of every day by showing their dance to the village folks, Sam thought. जब उसकी बात को सुना, जब इन बकरियों की हरकतों को देखा, तो सैम ने ये बात सोचा कि इनके ये करतूत को दिखा करके मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ और अपने घर चला सकता हूँ। He played the flute and the goats danced to the tune. Convinced by their performance, Sam returned home with the goats and the flute. तब ये डांस दिखाते हुए, ये मतलब सैम जो है गांव-गांव में जा कर के लोगों को डांस दिखाता और लोगों की तरफ अपना प्रदर्शन जो बकरियों के द्वारा किया जाता था उन चीज़ों से यकीन दिलाता था, और इन सारी करतूतों को करने के बाद वो अपने घर को वापस आता है। Looking at the goats, his mother became sad. But what could she do? She thought her son was gentle and had been cheated by the wicked market folks. अब उस बकरियों को देखने के बाद उसकी माँ जो है थोड़ी सी उदास हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, और कहती है कि अब मैं क्या करूँ। और उसको ऐसा लगता है कि उसका बेटा जो है भोला है और लोगों ने उसको धोखा दिया, और उन बदमाशों ने, जो बाज़ार में बैठने वाले जो लोग हैं, वे लोग इसको धोखा दे करके इसको कम पैसे में बकरी दे करके भेज दिया है। इफ़ द goats do not bring a few pennies for our food, I will sell them to our landlord, said Sam. अब इस बात को देखने के बाद सैम कहता है कि यदि इन बकरियों से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, अगर इनसे हम पैसे नहीं कमाते, हम इसको अपने ज़मींदार को या अपने मालिक को हम बेच देंगे। Sam started the show of her dancing goats in his village and nearby villages. The long ears of the goats flapped in rhythm and the movement of their limbs was very graceful. It was enough enhancing performance. अब सैम जो है इन बकरियों को लेकर के गांव में जाता है और लोगों के सामने इनके करतूत को या करामती को या इनके प्रदर्शन को दिखाता है, और जो इनके लंबे लंबे कान और फड़फड़ाती हुई कान जो है, जो ताल बजते हैं, रिदम्स जो बजता है, उसके अनुसार उनका मूवमेंट्स भी होता है और उनके होंठ भी उसी तरह से हिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी सुखद लोगों ने महसूस किया और इनके करामती को या इनके प्रदर्शन को बहुत लोगों ने बड़ाई की। द डॉटर ऑफ द लैंडलॉर्ड was a girl of a great beauty. When she heard about the dancing goats, she summoned Sam to show the fun. अब एक लड़की है जो ज़मींदार की बेटी है, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वो इस बात को सुनती है कि बकरियों के द्वारा नाच दिखाया जाता है, तो उसने ये कहला भेजी कि राजकुमारी जो है ज़मींदार की जो बेटी है वो आपको इन बकरियों के कारनामा दिखाने के लिए बुला रही है। द डॉटर ऑफ द लैंडलॉर्ड वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द गोट्स. She offered to buy one of the goats. Sam asked the girl to go to his house herself with a barrel of foodstuffs. The girl was so eager to have a goat that she agreed to go to the peasant's hut herself. Sam and his mother were very happy to welcome her. अब जब ये ज़मींदार की बेटी इस बकरियों के करामती को देखी तो
वो काफ़ी प्रभावित हुई और प्रभावित होने के बाद उसने ऐसे ही सोची कि मैं इन बकरियों में से क्यों नहीं एक बकरी को ख़रीद लूँ। और जब उसने सैम से पूछा कि मुझे तुम्हारी इन बकरियों में से एक बकरी चाहिए, तो सैम ने कहा कि ऐसा करो, तुम पहले अपने घर जाओ और तुम स्वयं जा कर के हमारे लिए एक गैलन भर के खाने की चीज़ें ले आओ। और लड़की जो है इतनी उत्साहित हो गई थी उनके बकरियों के कारनामों को देख करके, और इस बात को सुनते ही वो सहमत भी हो गई और वो स्वयं अपने साथ लेकर के भोजन वस्तु लेकर के इन किसान के घर में जाते हैं और वहाँ पर ये सैम और उसकी माँ बहुत ही आनंद के साथ उसका स्वागत करते हैं। A few days later, another someone came from the landlord, and Sam went to with his flute and 2 goats. और कुछ दिन के बाद फिर एक बार और बुलावा आता है उस जमींदार के घर से, तो सैम अपने साथ अपने बचे हुए 2 बकरियों को और बांसुरी को लेकर के उनके पास पहुंच जाता है। Sam, your goat did not dance at all. I called expert musicians to play, but it won't dance. They say it wants a partner, so let me have another goat, said the girl. अब जब सैम को दोबारा वो बुलाती है तो सैम के पास ये खबर पहुंचता है, तो वो कहती है कि तुम्हारी ये बकरियां तो बिल्कुल नाचती ही नहीं है और मैंने बहुत विशेष संगीतकारों को बुलाई, उनसे बजवाई, लेकिन ये बकरियां तो नाचती ही नहीं है। तो मैंने सुना है कि शायद इनको अपने साथ अपने पार्टनर की, अपने जोड़ी की या अपने साथी की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा एक और बकरी को ले लूँ। Sam was enhanced by the beauty of the girl. He agreed to give another goat for the gold ring of the girl and a barrel of foodstuffs. अब ये बात को सुन करके सैम जो है मंत्र मुग्ध हो जाता, मतलब अपने अंदर ही इतना खुश हो जाता है कि ये एक लड़की जो है दूसरी बकरी को भी मांग रही है। तो इस बात से वो सहमत होकर के वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दूसरा बकरी भी दिया, लेकिन इसके पक्ष में मुझे क्या मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है सोने की वो, और उसके साथ साथ भोजन वस्तु हमें मिलना चाहिए। तो बट द 2 goats डिड नॉट डांस अगेन। सैम वॉज कॉल्ड एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस। अब ये 2 चीज़ लेने के बाद भी ये बकरियां जो है नहीं नाच रही है, फिर दोबारा उसको बुलाया जाता है। What am I to do now? The musicians say that all the 3 goats will dance together, but how can I ask for you the 3rd goat, as it is the only pet left with you? अब यह जब तीसरी बार बुलाया गया तो वो पूछता है कि अब बताइए कि हम आपके साथ क्या करें। वहाँ जितने भी संगीतकार लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा कि हमने अपनी कड़ी मेहनत करके हमने प्रयास किया कि आपके इन बकरियों को नचवा दूँ, लेकिन ये लगता है कि ये तीनों बकरी एक साथ रहेंगी तभी ये नाचेंगी, लेकिन मैं आपसे ये तीसरी बकरी कैसे मांग सकती हूँ, क्योंकि आपके पास तो एक अकेला पालतू बच गया है, अब इसके अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। तब सैम सेड, I would part with my only goat if it would make you happy, but let me play my flute and see them dance for one last time. सैम कहता है कि चले कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए ये तीसरा बकरी भी मैं बेच दूंगा, दे दूंगा, मैं अकेले रह लूँगा, लेकिन देने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो बांसुरी है मैं उसको बजाऊँ और उनको अंतिम बार एक बार नाचता हुआ देख लूँ। Now I know, my dear Sam, it is the magic of the flute that made the goats dance. So give me this flute too. अब ये बात को देखने के बाद म्यूजिशियंस और वो लड़की जो है, ज़मींदार की बेटी जो है, वो कहती है कि हम जानते हैं कि ये तुम्हारे बांसुरी के जादू है और जिसकी वजह से उसकी आवाज़ को सुन करके बकरियां नाच रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बकरियां और साथ साथ ये बांसुरी भी मुझे दे दो। Sam gazed at her and said, My dear lady, I want you to tell me the meaning of the 3 different gems set in the gold ring you gave me. अब जब ये तीसरी बात सुनता है तो सैम जो है उसकी ओर घूरता है और उससे कहता है, हेलो बहन, एक बात बताओ, जो जवाहरात तुमने मुझे दिए थे उसके ऊपर 3 पत्थर लगे हुए हैं, बहुमूल्य पत्थर लगे हुए हैं, उन तीनों पत्थरों का मतलब क्या है, उनका मतलब मुझे बता दो तो मैं ये बांसुरी, ये बकरी, ये सब तुझे दे दूंगा। द गर्ल हेजिटेटेड फॉर ए वाइल, शी वंडर्ड, कैन दिस लैड ऑफ ए पुअर पीजेंट एस्पायर marry me? Why is he curious to know the meaning of the 3 gems?
but I have to take the goat and the flute. अब लड़की इस बात को सुन करके थोड़ा सा झिझकती है कि अरे ये मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहा है। वो उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है। फिर वो सोचती है कि कहीं ये लड़का मेरे महत्वाकांक्षा करना तो नहीं चाहता है, या फिर किसी बात में ये कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे शादी करने के लिए उत्सुक हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर इसको तीन, और मुझे यकीन नहीं होता है कि ये इस बात को याद रखेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर इनका अर्थ ये पूछता है तो मैं बता देती हूँ। लेकिन मुझे तो इसके अर्थ बताने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो उन बकरियों को और उसके साथ उसके जहाँ हाथ में जो जादुई बांसुरी है वो मुझे चाहिए। देयर आर 3 strange stands on hair hidden among my black silken tresses. One is pure white, color of a diamond. One is dark red, color of a ruby, and one is bright green, the color of an emerald. So there are 3 gems of similar colors in my ring, but all this is a secret, dear Sam. अब ये बड़ी मतलब अजीब अजनबी व्यक्ति है ये सामने खड़ा, और ये ऐसा व्यक्ति ऐसा बात को पूछ रहा है। फिर वो अपने आप को थोड़ा सा छुपाते हुए शर्माते हुए इस बात को बताती है कि मेरी जो काली जो रेशमी बालें हैं उसमें ये जो पत्थर जो लगी हुई है इसका जो भिन्न भिन्न अर्थ है वो काफ़ी अलग है। एक है जो सफ़ेद रंग का है जो डायमंड का है, और एक लाल रंग का है जो रूबी से बना हुआ है, और तीसरा जो है चमकीला हरा है जो एमरलैड है। एमरलैड का मतलब पन्ने का है। और ये बातें जो है तीनों बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे से, और एक दूसरे से मिली जुली है, और इसका अर्थ उन तीनों चीज़ों का अर्थ उस एक अंगूठी में पिरोया हुआ है, और ये काफ़ी रहस्यमय बात है करके वो बताती है सैम को। Meanwhile, Sam worked as a laborer on his landlord's farm. He was happy because he could earn grains from himself and his mother. और वो इस बात से बहुत खुश था, और कह रहा है कि इसी बीच में वो अपने ज़मींदार के फार्म में क्या करता था, मजदूरी करता था, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने मेहनत से अपने माँ के साथ मिल करके वो अपने लिए भोजन जमा करता है या पैसे कमाता है। After a few months, the landlord intended to find suitable groom for his daughter. He announced that whoever could name the 3 colors of the strands of hair hidden among her black silken tresses should have for bride. अब कुछ महीनों के बाद ज़मींदार ने इस बात का मतलब घोषणा किया, लोगों को बताया कि यदि उस अंगूठी में पाए जाने वाले इन 3 रंग के बारे में जो उसका सही अर्थ को बताएगा उसको उस राजकुमारी मतलब उस ज़मींदार की बेटी का दूल्हा बना दिया जाएगा। यंग मैन फ्रॉम नियर बाई विलेजेस केम ट्राइड देयर लक बट नन कुड मेक द राइट गेस। Sam hesitated to go forward. He was a poor laborer. He loved the girl so much, but did she love him? And the landlord also would not like to have the poor son-in-law. अब देखिए वहाँ बहुत से गांव के लोग जो है प्रयास किए जा करके उसका सही अर्थ बताने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और सैम के अंदर में भी झिझक था, मतलब वो क्या बोलते हैं, झिझक रहा था, घबरा रहा था कि कहीं ये हम तो एक तो गरीब मज़दूर हैं और हम उसको चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन पता नहीं क्या वो मुझे चाहती है या नहीं। और ऐसे भी देखा जाए तो ये ज़मींदार लोग जो हैं, बड़े लोग हैं, ऐसे गरीब दामाद को अपने यहाँ रखना नहीं चाहेंगे। वन डे ही मेट द हैंडसम and gaily dressed young man on the main road. The young man could not guess the right color of the strands. Sam requested to him to borrow his dress for one day to try his luck, but the kind young man agreed just for the sake of curiousness. और एक दिन एक बहुत खूबसूरत लड़के से उसकी मुलाकात होती है रास्ते में, और वो उसको देख करके उसके रंग को बताने का चाहत रखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाए तो उसकी बात को सुन करके लोग उससे सहमत हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि एक बार मुझे एक दिन के लिए उसके कपड़े को मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसका रंग बताने का प्रयास करूँगा। The hall of the landlord was crowded with a number of suitors, all trying to guess the colors of the strands. Nobody recognized Sam in the new dress, neither the landlord nor his daughter.
और वहाँ जमींदार के पास में बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होकर के इसके रंग के अर्थ को बता रहे थे, लेकिन कोई भी इसमें सक्षम नहीं हो पाया। और इसी बीच में वहाँ पाया गया कि सैम जो है एक अजीब से सुंदर वस्त्र पहनकर उनके सामने खड़ा है, और यहाँ तक कि जमींदार और उसकी बेटी भी उनको पहचानने से इनकार किया, मतलब नहीं पहचान पाए। एट द लास्ट यंग मैन Sam said, "The color of one strand is pure white, the color of a diamond, one dark red, the color of the ruby, and one bright green, the color of an emerald. That is the right answer," exclaimed by the landlord. और ये सैम से पूछता है जमींदार, अच्छा तुम बताओ क्या है। तो सैम जो है उन तीनों कलर को बता देता है। तो वो इसको सुनकर, मतलब सुन करके कहता है ये तो सही आंसर है। वो चिल्लाता है और कहता है वाह, ये तो बहुत समझदार लड़का है, इसको कैसे मालूम है। सैम टुक ऑफ हिज हेड ड्रेस और नाउ द लैंडलॉर्ड रिकॉग्नाइज सैम। और सैम जो है इस तरह का वस्त्र पहना था कि उसको देखकर कोई पहचान नहीं सकता। जब सैम ने अपने ऊपर के वस्त्र को हटाए तो जो वहाँ का जो जमींदार था, जो लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था, वो उसको देखकर पहचान लेता है और उससे पूछता है हाउ यू केम टू नो द सीक्रेट। और वो उससे पूछता है कि इस रहस्यमय बात को तुम कैसे जान पाए। सैम नैरेटेड द स्टोरी ऑफ द गोड्स एंड सीक्रेट ऑफ द गोल्ड रिंग। और सैम जो है अपने रहस्यमय बात को, अपनी कथा को उसके सामने प्रदर्शित करता है और उसको बताता है, वर्णित करता है कि इस बकरी के साथ और इस रहस्य में अंगूठी की जो कहानियाँ है, बातें, ये मुझे कैसे पता चला, ये सारी बात उसको बताता है। द लैंडलॉर्ड सेड टू हिज डॉटर, यू हैव गिवन हिम द रिंग एंड टोल्ड हिम द सीक्रेट, यू शुड एक्सेप्ट हिम एज योर ग्रूम। द गर्ल नॉप्ड। और मालिक जो है वो अपनी बेटी से कहता है कि तुमने ही वो रिंग उसको दी है और उसके रहस्य में बातों को बताई है, इसलिए अब तुम उसे अपने दुल्हे के रूप में स्वीकार करो। तो वो लड़की अपने सिर को हिलाती है और उसको स्वीकार करते कि हाँ, ये मेरा दुल्हा होगा। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? द मोरल ऑफ द स्टोरी, द स्टोरी नरेट्स एडवेंट ऑफ गुड लक, व्हेन गॉड गिव्स ही गिव्स एज ए ह्यूज विंडफॉल। मतलब इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारे पास किसी चीज़ का आगमन होता है, यानी अच्छे भाग्य का जब हमारे पास आगमन होता है, यानी तो ऐसा भी कहा जाए कि जब ईश्वर देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है, यानी विशाल, बहुत मात्रा में और अप्रत्याशित रूप से हमको मिलता है। कहता है ना, जब भी देता है भगवान तो देता छप्पर फाड़ के। यही मतलब है कि यदि हम अच्छे काम करने के लिए अच्छा मन से रहते हैं तो वो चीज़ हमें सही समय पर और इतना मिल जाता है कि वो हमारे प्रयास से भी ज़्यादा हो जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी what I was to complete you from last 1 week. I was unable to do, but today I have completed, and today I will send you to this story to your group and read the chapter, listen the audio,